بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں بلوچستان اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے پہ میں سی ایم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپوزیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کی رسم رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے جس دن ہم نے بجٹ پیش کی، جس طرح آپ نے کے پی کے میں دیکھا، جس طرح آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا، الحمدللہ مگر ہمارے دوستوں نے بلوچستان کے رسم رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لوگوں نے اس طرح کوئی کاپیے ماپیے نہیں پھاڑے. ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے دوستوں کا. اپوزیشن ہے وہ ہم پہ جہاں ہم خامی ہیں وہ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتحادی حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے جس کو میں عوام دوست اور بلوچستان دوست بجٹ کہوں گا. سب سے بڑا کامیابی یہ ہے کہ پچھلے ہمارے بلوچستان کے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے گمبڑ جاتے تھے. پہلا یہ کریڈٹ سی ایم صاحب اور میر صادق کو جاتا ہے کہ جدوجہد کر کے نصیر آباد میں ایک گمبٹ کے مقابلے میں ایک لیور ہاسپیٹل کا بلاول بھٹو صاحب نے تجویز دیا تھا، جناب آصف علی زرداری نے، جو کہ یہ موجودہ مخلوط حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. دوسرا جناب اسپیکر، ہمارے دوست جو آج چاہے اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھا ہو، کچھ دوست ہمارے 2008 میں ہمارے ساتھ ممبر صوبہ اسمبلی تھے جو کہ ہمارے پاس تنخواہوں کی پیسے نہیں تھے. ہم گئے جناب آصف علی زرداری کے پاس، اس نے 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے مد میں جو ہمیں اربوں روپے دیا، جو کہ آج کسی کو 80 ارب مل رہا ہے، یا اس سے پہلے 3 ارب روپے دیا جاتا تھا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جناب آصف علی زرداری کو، جو صوبہ خود مختاری دیا. مگر دوست پریس کانفرنس کر کے آصف علی زرداری پہ تنقید کرتے ہیں. نو پرابلم. دوسرا، یہ واحد بجٹ ہے جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، ایریگیشن اور باقی تمام محکموں کو، خصوصاً لوکل گورنمنٹ، 108% ان کے بجٹ کو بڑھایا گیا ہے. آپ ایجوکیشن کو دیکھیں، آپ ہیلتھ کو دیکھیں. اگر کوئی میرے حلقے سریام میں کوئی ٹیچر نہیں آتا ہے، اسکول بند ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے یہاں بھیجتے. اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر ایجوکیشن نہیں ہے، یا کسی ہاسپیٹل میں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا ہے. بے شک منسٹر ہیلتھ کا ذمہ داری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے کا ایم پی اے کا بھی ذمہ داری ہے. دوسرا، میرے دوست، میرے بھائی، جس بجٹ میں جب وہ کدھر گئے ریکی صاحب، زابد ریکی صاحب نے جب خمیس نہیں نکالا، سمجھو کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ وفاق نے ہمیں نظر انداز کیا. میں وفاق کی وکیل بن کے بتانا چاہتا ہوں کہ 40 ارب روپے ہمیں ایگریکلچر کے تھرو، جو کہ ہم بلوچستان کے زمینداروں کا 30,000 ٹویلوں کو شمسی کر رہے ہیں. یہ کس نے دیا؟ ہمیں وفاق نے دیا. دوسرا جناب اسپیکر، سب سے بڑا کامیابی اس حکومت کا، پچھلے بھی حکومتیں آئے، ان کو کیوں یہ بلوچستان کے نوجوانوں کا سوچ نہیں آیا؟ یہ جناب سرفراز خان بگٹی اور کس کا، جناب آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بے نظیر اسکالرشپ کے تھرو ہمارے بچے لندن کے
वो हाई कौन सा स्कूल है, एक्सफोर्ड में जाकर पढ़ेंगे। पहले किसी ने इस तरह किया है? फिर भी हम पे तनकीद। कोई वजीर आला के बच्चा रोता है तो उसको कोई दूध देता है, आप यहाँ के बैठे बोलते हमारा स्कीम में नहीं डाला गया है। भाई आपके हाथ पाँव में मेहंदी नहीं है, आप जाओ, वजीर आला सबका है, आपको दे देगा। तो बलूचिस्तान जिस तरह बाकी लोगों का है, इस तरह हमारा है। हम फेडरेशन की सियासत जरूर करते हैं, मगर ये हमारा सरजमीन है। आपने खुद देखा कि सिर्फ इस एक फंड के लिए हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी कौम परस्ती का सियासत करता है, मीर हसन बलोच भी कौम परस्ती का सियासत करता है, मगर ये उस हद तक नहीं जाते कि सिर्फ बलोचियत है तो फंड है, अगर फंड नहीं है तो बलोचियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि दो दो दफा ये लोग वजीर आला बने, आप उनके हल्के को भी देखे, डॉक्टर साहब का भी देखे। हसन साहब के साथ तो मेरा हमेशा झगड़ा होता है, मगर कहीं कहीं पे मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि इसने एक पंजगूर में 7,000 मुलाजिमत दिया। आप बताओ, इन लोगों ने अपने वजारत आला के दौर में कुद्दूस के साथ आधा शरीक थे, कितने नौकरी दिया बलोचों को, कितने नौकरी दिया पश्तूनों को। आज अखबार में लगा हुआ था, किसी ने लिखा था बलोच दुश्मन बजट, किसी ने लिखा था पश्तून दुश्मन बजट, ब्याबाकाल बाजुरियावर। ठीक है, बात इस तरह है कि ये बलोच और पश्तून दुश्मन कौन सा बजट है? जो पहला दफा इस हुकूमत में जो आवाम दोस्त बजट दिया है, मुलाजिमतें दिया है। हम जब काम खुद नहीं करूंगा, मैं अपने तरफ से अपने दोस्त सफेद रीश, हमारे चीफ ऑफ ग्वादर अपना मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को मैं अपने सरेआब का जितने मेरा फंड है मैं उसको सरबरा बनाता हूं, मेरा फंडों को चेक करे। 2018 का 8 का जो 2013 तक हमने खर्च किया, और 2018 से 2024 में जो सरेआब का हशर 4-4 अरब रुपए जो पिछले हुकूमत में इन भाइयों ने जो बाईकाट करके चले गए, जो एयरपोर्ट पे ब्रीकेज डॉलरों से पकड़े गए, उसको चेक करो और मेरा 2008 का चेक करो, फिर इंसाफ आपके हाथ में है। हम भी चाहते हैं, असद बलोच भी चाहते हैं, डॉक्टर मालिक भी चाहता है, यहाँ बैठे इक्तिदार के लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, वहां पे बैठे मेरे भाई जो हमें असेंबली में भेजे हैं ये भी चाहते हैं, ये हमारे अफसरान भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान से करप्शन का खात्मा हो। मगर अकेला हम नहीं कर सकते हैं जब तक हम सब इकट्ठे न हो। हमने पहले अपने घर से शुरू करना है कि हम जब वर्क ऑर्डर देते हैं ठेकेदार को कि मैं पाकिस्तानी लुक इस्तेमाल करूंगा, मैं पाकिस्तानी सरिया इस्तेमाल करूंगा, वो हमारे बिरावी का एक मिसाइल है मिश, उसके बाद लुक ईरान का, वो भी डीजल मिला के, और सरिया ईरान का, कोई बैलेंस चेकिंग नहीं है। अच्छा, उस रोड पे अगर आप स्पीड से गाड़ी घुमाओ, रोड खत्म। इसको किसने देखना है? मेरा हल्का है, मैंने देखना है, मैंने उसको चेक करना है। आप आ जाए, मैं दावत देता हूं मौलाना साहब को, दोस्तों को, ये बलूचिस्तान आपका हमारा घर है। हम पहले चमन जाए, कैप्टन साहब का हम जो काम हो रहा है उसको चेक करें। हम पंजगुर जाते हैं, मीर असद का जो पिछले वो एक MP है, उसने कितना काम करके दिखाया। डॉक्टर साहब ने और बलूचिस्तान नहीं, तुर्बत को तो तुर्बत बनाया ना। आप उन भाइयों से पूछे जो बलोच 16 अरब सरेआब के नाम से 16 अरब रुपए इमरान खान ने दिया, 16, ठीक है। मगर एक पावली अगर सरेआब में किसी ने खर्च किया है, मैं जुर्मान है। वो कहां गए? पहाड़ों में, कोई उनका नाम निशान नहीं है। इंसान अगर किसी पे एक अंगुली उठाता है तो 4 अपने तरफ आते हैं। अभी जुम्मा हमारा 2 महीना हुआ है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे अपोजिशन वाले भाई बैठे, ये भी मुंतखब नुमाइंदे, इनको अवाम ने यहाँ भेजा है। हम चाहते हैं कि उसका भी, उनका अवाम का भी हक है, उनको उसी तरह चलाया जाए। गवर्नमेंट के
लोगों का, मैं सीएम का मतलब हम सारे नजदीक तरीन दोस्त हैं। आप पीसीडीपी को चेक करें, अगर 80 करोड़ से एक पावली भी, वो 2 अबूल बीवी के नाम पे मुझे दिया है, इसका मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर हम लेते अपने लिए लेते, हम सब मिल के, अल्लाह गवाए, हम इधर के तक आप आ जाए सीएम साहब के साथ बैठे, ये मामा मेरा बेटा अपोजिशन लीडर, फिर लोग बोलते इसको मामू बना दिया, भाई रिश्ते में मेरा मामा है, क्या करें, ठीक है, हम आपस में बैठे, जनाब स्पीकर साहब हम आपस में बैठे, बलूचिस्तान के मसले को हल करें, नौजवानों को रोजगार दे। जब हम नौजवानों का रोजगार 7-7 लाख में पिछले गवर्नमेंट में बिकते हैं तो नौजवान मायूस होकर गलत रास्ता पकड़ते। हमने कसम उठाए इस असेंबली में कि पिछले 2008 में सारे दोस्त अभी अगर मेरे मौकों में भी एक बंदा इधर खड़े होकर कहे, जब अभी तो हमने नौकरी दिया नहीं, कि फिलहाल बंदे से किसी ने पैसा लिया, इधर ही हमें फांसी दो, हम नौकरी इंशाल्लाह नहीं बेचेंगे। और सारे दोस्त इस तरह है, मैं सबसे उम्मीद करता हूँ जब नौकरी हम वही देंगे तो हमारा बच्चा, हमारा नौजवान गलत रास्ता नहीं पकड़ता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। हम पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेशन, जनाब स्पीकर अभी मैं बात करूंगा तो बोलते पीठ पीछे, अगर भाई जान से बैठता मैं बात करता। आपको याद होगा 73 था जब सरदार साहब का पहला हुकूमत था, बलूचिस्तान से टीचर और प्रोफेसरों को निकाला गया। आज यहां बैठे लोग, हम पिछले 50 साल में, मैं बाकी 100 साल पीछे, कायदीन थे उनके बारे में नहीं बोलो, जो कुछ हमें कहना है 73 को छोड़ो। 73 जब उठाओगे तो यहाँ ब्लास्ट होगा। मैं आपसे 10 बम है नहीं ब्लास्ट नहीं, मैं तो फिर हम भी उठ जाएंगे। 73 के विक्टिम तो हम हैं। बाकी देखिए ये हमारा कसूर है, इधर घूमो उधर नहीं जाओ, ये हमारा कसूर है कि आज एजुकेशन में सबसे हम पीछे हैं। बात फिर बलूचियत का, बात बलूचिस्तान का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। स्पीकर साहब, बलूचिस्तान जब भी पार्लियामेंट बना उस दिन से लेकर आज तक बगैर बलोच का कोई वजीर आला आया है? आप मुझे बताओ। हम खुद नहीं करते हैं तो गिला वफाक पे, हम खुद कुछ नहीं करते हैं तो गिला किसी और पे। हम अपने तरफ भी देखे, हम बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को भी देखे। हम 80 पंजाब का 2 करोड़ रुपए फंड है, सिंध का 3 करोड़ है, हमारा 80 करोड़ है, फिर भी रोड के ऊपर रोड, नाली के ऊपर नाली वगैरह के ऊपर फिर भी नहीं बनते। तुम जावे तो जावे कहाँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और सबसे बड़ा, जमींदारों को रिलीफ देने के लिए 2000 ट्रैक्टर इस दफा इस पीसीडीपी में डाला गया है जनाब आसिफ अली जरदारी के हुक्म पे, जो हर जमींदार को हम 50% सब्सिडी पे दे देंगे। जो भी हमारा आपका जो इत्यादि हुकूमत है, हमारा वस चलता है, हम आवाम को रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा 5 साल हुकूमत इंशाअल्लाह पूरा होगा, फिर उसके बाद आप पिछला भी हिसाब करें और हमारा भी हिसाब करें कि हमने बलूचिस्तान के लिए ज्यादा काम किया है या पिछले जो 2018 से 2023 तक हुकूमत की उन लोगों ने किया है। तो आप तमाम दोस्तों का, अगर मेरा किसी दोस्त को बात हरेन लगा, माजरत। थैंक यू डॉक्टर रुबाब।